In case you're removed, you can rejoin. There might be some technical issue. They have just prompted me, Google Meet. In case you are removed, you can rejoin at that link. Okay. Okay. So good afternoon, everyone, and welcome to the second revision class on amalgamation. And a very quick recap of what we have done in the last class. We have discussed what do you mean by amalgamation, absorption, and external reconstruction. And with that, I have a few small questions for all of you so that we could understand that whether you've understood it or not. Anisha, are you there? Can you unmute yourself, Anisha? Anisha? Or Rohit, are you there? Rohit? Let's see who's the next person, please. We have to, because quickly do the recap. So I want you people to reply to what I'm asking. Is Mahim there? Namya, are you there? Namya. Are you there, Namya? I want to ask a question. Ishita Nakra, can you reply? The question is, everyone, my question is, in absorption, is there a new formation? Yes or no? You have to just give that answer. Ishita, can you reply? In absorption, is there a new formation? Yes or no? No, ma'am. Good. All right. Next question will be to, let me see, whom shall I ask the question? Let's go back. Pankaj, are you there? Pankaj? Yes, Pankaj. So Pankaj, regarding the merger 5 condition, can you give me any one condition regarding merger? Ma'am, all the asset and liabilities of transfer company are transferred to purchasing company. Okay, fine, Pankaj, that's fine. All right, so all of you, very quickly, we have done all the 3 definitions, or rather the meaning. We have talked about AS14. I hope all the 5 conditions of merger are clear to you, because we are going to move ahead today. And we also discussed calculation of PC last time. The next thing that I'm going to do with you, like I told you, we are going to start with journal entries. And today we are going to do the journal entries in the book of the vendor. Okay, so just yeah. Please explain the intrinsic value method. Which one? Intrinsic value. Intrinsic value. Okay. Intrinsic value is nothing but intrinsic value means that it is the actual or ingrained value of a share. How do you actually calculate value of a share is that net asset, whatever is the net asset of the company, divided by the number of the shares, equity shares, so to say. So for example, in your company, you have been told that there are 10,000 worth of assets and 10 lakh worth of assets and 5 lakh worth of liability. It means that what is the value of net assets? 10 lakh minus 5 lakh, which comes out to be 5 lakh. I am also given that the number of shares that I have is 10,000. It means 5 lakh divided by 10,000 becomes the value of each share. Now, if you would have done the questions that you would have done, it would have shown that दोनों कंपनी के लिए, वेंडर कंपनी के लिए भी और परचेजिंग कंपनी के लिए भी आप इंट्रिंसिक वैल्यू पहले निकालोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है. And then based on that, you decide that how many shares are you going to give to the vendor company. That is what intrinsic value method or swap ratio method is all about. Okay. So, yeah, now what I want to do is the entries in the books of vendor. Please, I have a question now. Aviral, are you there? Can you answer? Yes, ma'am. Yeah. Aviral, my question is, can you tell me who a vendor is, or rather, can you give me another word for a vendor? How would you explain? Transferor. Any other word? In simple terms, भाई ये गाने कहाँ चल रहे हैं? Please बंद कीजिए. Yeah. So in simple terms, a vendor is a seller. Am I right? Okay, fine, Aviral, mute yourself. Now let's talk about the entries that you're going to do in the vendor's book. Please note
that a vendor is the seller. Thus, it means ये कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करेगी. अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई आपका अब्जॉर्प्शन है या अमेलगमेशन है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, तीनों ही केसेस में फॉर्मेशन चाहे हो या ना हो, नई कंपनी चाहे बने या ना बने, पर लिक्विडेशन तो होता है. इज इट कॉमन इन ऑल थ्री? यस और नो? इज इट ट्रू? प्लीज आंसर. यस. सो मतलब जो लिक्विडेशन होता है किसका होता है? वेंडर कंपनी का होता है, जो बेच रही होती है अपनी कंपनी. सो देयरफॉर अब ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी. इट विल नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. इसके एसेट्स नहीं रहेंगे, इसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी, इसका कुछ भी नहीं रहेगा. Therefore, the first entry that I am going to pass in the books of vendor, please note, is transfer all assets to realization account. What does it mean? It means मेरे पास let's say assets हैं, plant and machinery, land and building, etc., etc. सबका debit balance होता है, all of you know. So therefore, now if I want to close the land and building account, मेरे पास let's say land and building में दिखा रहा है to balance brought down 10 lakh. What entry will I pass? मुझे बाय कुछ करना पड़ेगा 10 लाख और उसी से मेरी एंट्री क्लोज हो सकती है, उसी से मेरा अकाउंट क्लोज हो सकता है. That is what I am doing. I am transferring all the assets. Realization account to assets. This is what I am doing. I repeat, the first thing I'll do is I will transfer all the assets to the realization account, which means realization to asset. मैंने क्यों किया इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया. अब क्वेश्चन ये है, इन एसेट्स को मैं किस वैल्यू, आई मीन अग्रीड वैल्यू पे डालूंगी रियलाइजेशन में, बुक वैल्यू पे डालूंगी रियलाइजेशन में, या किस वैल्यू पे मैं ट्रांसफर करूंगी रियलाइजेशन में? एनी आंसर? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? एट बुक वैल्यू मैम. एट बुक वैल्यू, क्योंकि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे दी है, मुझे उसको बंद करना है, तो मैं उसी वैल्यू से उसको दूसरी एंट्री कर दूंगी और उससे वो बंद हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन, हाउ अबाउट कैश? देखो हमने बात की है कि एक होता है मर्जर, एक होता है परचेज मेथड. अब क्वेश्चन ये है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया हो, मर्जर में तो होता है कि भाई सारे ही एसेट्स आप टेक ओवर कर रहे हो, विच मीन्स टू कैश भी करोगे आप, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन परचेज में हो सकता है, परचेज में हो सकता है कि कैश आपने टेक ओवर नहीं किया हो. आई रिपीट, परचेज में हो सकता है कैश आपने टेक ओवर नहीं किया है. तो हमारी कंडीशन क्या है? दैट कैश विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन इन केस ऑफ मर्जर. उसका तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि मर्जर के केस में तो सभी होंगे. बट इन केस ऑफ परचेज, in case of purchase, cash will only be transferred if taken over. Taken over. अगर टेक ओवर किया होगा तो ही हम कैश को ट्रांसफर करेंगे. एक ही सिंपल सा डिफरेंस है, अदरवाइज वेंडर कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है एंट्रीज में, आपकी परचेज मेथड में भी और मर्जर मेथड में भी. ठीक है, पहली चीज हो गई मेरी, मैंने सारे एसेट्स अपने ट्रांसफर कर दिए एसेट्स अकाउंट को बंद करने के लिए. अब सिमिलरली जब मैं एसेट्स को बंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लिक्विडेशन हो रही है, तो मैं अपनी लायबिलिटीज को भी करूंगी. सो देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल लायबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ ऑल लायबिलिटीज, दैट इज उल्टा हो जाएगा. पहले किया था रियलाइजेशन टू एसेट, अब क्या करूंगी? लायबिलिटी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शो करता है, तो मुझे 2 में एक एंट्री करनी पड़ेगी. सो देयरफॉर इट विल बी लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट. टिल हियर एनी डाउट प्लीज आस्क. इन 2 एंट्रीज में कोई डाउट है तो पूछिए क्लास. आई एम वेटिंग. So I assume there is no doubt. So this is clear, okay? Now, third, अब आपको ध्यान है, हमने भाई करा है, डील करी है कि भाई मैंने आपका बिजनेस इतने में खरीदना है. अभी डील ही हुई है, अभी कोई पेमेंट नहीं हुई है. ठीक है, आई एम रिपीटिंग, अभी डील ही हुई है, अभी कोई पेमेंट नहीं हुई है. So the next entry that I'm passing is to record the sale of business. कैसे करूंगी ये? ट्रांसफरी कंपनी कौन है? आई रिपीट, मैं ट्रांसफरर की बुक्स में एंट्री कर रही हूँ, ट्रांसफरी को डेबिट कर रही हूँ, विच मीन्स ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन
अकाउंट। इस पे मैं एक बार आती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट देख देती हूँ आपको ताकि ध्यान रहे। ये सब है आपका बुक वैल्यू पे। अग्रीड वैल्यू, फेयर वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये है मेरा बुक वैल्यू। अब इस पे आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, और ये मैंने क्वेश्चन क्लास में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ट्रांसफरी कंपनी को मैं डेबिट क्यों कर रही हूँ भाई? ट्रांसफरर ट्रांसफरी को डेबिट क्यों कर रहा है? एनीवन, जिससे किसी को याद हो? नो वन? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। नहीं, यू आर टेलिंग मी कि किस अमाउंट से। मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफरी कंपनी को मैंने डेबिट क्यों किया? दिस इज राइट, बाय द अमाउंट ऑफ पीसी। Ma'am, because why- the Yeah. transferee company is supposed to pay that an amount to the transferor company for the assets that he's taking over. Yeah, but still that doesn't justify. It means that does it mean that transferee becomes a kind of a debtor? Does it mean that? Yes, ma'am. That is the point. That is the point. So therefore, मतलब in short, अगर आप देखो एक बहुत important चीज, यूजुअली आपको एंट्रीज या फिर आपको बोला होता है कि भैया आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं वो बनाओ। सो लेट्स से आई विल जस्ट शो यू आल्सो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए मेरे को क्या करना है। अभी तक जो मैंने एंट्रीज की हैं वो भी बना लेते हैं साथ के साथ। लेट्स से 2 में ही कर रही हूँ मैं। पहली एंट्री क्या की थी? रियलाइजेशन टू एसेट्स। दूसरी एंट्री क्या की? लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। Yeah, so this is it. And then तीसरी एंट्री की मैंने बाय ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, ओके। दिस इज व्हाट हैपेंड टिल नाउ। अभी तक क्या हुआ? मैंने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए, मेरे रिकॉर्ड कर दिया सेल ऑफ बिजनेस। अब है, हो सकता है ये केस है मेरे पास, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। भाई जो भी खर्चा वर्चा आया रियलाइजेशन में, उसको कौन पे कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होगा। Yeah, so treatment of realization expense. Now depending on who is actually making the payment, सबसे पहला केस लिखते हैं, if borne by the transferor, if borne and paid by the transferor। मैं कौन सी किसकी बुक्स में बना रही हूँ? किसकी बुक्स में बना रही हूँ बोलो? In the books of transferor. तो हाँ, तो ठीक है। तो इसका मतलब है अब मैं ट्रांसफरर की बुक में बना रही हूँ और ट्रांसफरर ही बॉन्ड कर रहा है और ट्रांसफरर ही पे कर रहा है, तो मतलब मेरे को एंट्री भी करनी पड़ेगी ट्रांसफरर की बुक में। भाई अब जब मेरे को अकाउंट क्लोज करना है, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जिसमें मैं सारा प्रॉफिट लॉस निकालूंगी रियलाइजेशन से, कि भाई जो भी मेरे पास एसेट्स थे, लायबिलिटीज थे, बच गया जो प्रॉफिट लॉस। तो मतलब जो भी एक्सपेंसेस पे कर रही हूँ, विच मीन्स ट्रांसफरर अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर रहा है तो उसकी भी एंट्री करेगा। दैट इज रियलाइजेशन टू, ये मैंने पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन। ये लेकिन कब होगा प्लीज रिमेंबर, ये तब होगा जब बॉर्न एंड पेड बाय द ट्रांसफरर है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया टू कैश या बैंक, व्हाटएवर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, दिस इज एक्चुअली रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब दूसरा केस हो सकता है कि भाई ट्रांसफरर ने पे नहीं किया हो। नेक्स्ट है, इफ बॉर्न एंड पेड बाय द ट्रांसफरी एंड paid by the transferee। क्या करूं? बुक है ट्रांसफरर की, पेमेंट कर रहा है ट्रांसफरी, तो क्या करूं? No entry. नो एंट्री, सिंपल नो एंट्री। लेकिन अब एक तीसरा केस भी हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? अगर भाई पहले तो ट्रांसफरर ने पे कर दिया और बाद में ट्रांसफरी ने उसे रीइंबर्स कर दिया। तो इफ फर्स्ट पेड बाय transferor and later reimbursed by transferee। अब पहले कौन कर रहा है पेमेंट? ट्रांसफरर कर रहा है। जब ट्रांसफरर पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या करूंगी? रियलाइजेशन टू बैंक। मुझे पता है यही होता है।
लेकिन अब लेटर वो कह रहा है कि ट्रांसफरी ने आपको पेमेंट दे दी। अगर आपको ट्रांसफरी ने पेमेंट दे दी तो क्या होगा? जब उसने दी होगी तो बैंक टू रियलाइजेशन हो जाएगा। यही हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम फिर ये एंट्री पास ही क्यों करनी है? भाई अमाउंट्स में फर्क तो हो सकता है। हो सकता है ट्रांसफरर ने बॉन्ड किया हो, पे किया हो 10,000 और ट्रांसफरी ने सिर्फ 9,000 ही आपको दिया हो। सो देयरफॉर इसके लिए आपको बेटर रहता है कि इस टाइप की एंट्री आप पास कर दें। एनी डाउट? एनी डाउट? यस मैम। बोलो। मैम बुक में आई गेस गलत दिया हुआ है। नहीं गलत नहीं है, वो भी ठीक है, उसमें शायद ट्रांसफर ही लिखा होगा। पढ़ो क्या दिया वो बोलो। मैम ट्रांसफरी टू बैंक, फिर उसके बाद बैंक टू ट्रांसफरी। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है बाय द वे। अगर आप वो भी करोगे दैट इज ट्रांसफरी टू बैंक, यहाँ पे देखो, यहाँ उसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट उसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलती हूँ, यहाँ लिख भी देती हूँ एक्चुअली, ब्रॉट इट अप, तो ट्रांसफरी बैंक और उसके बाद बैंक टू ट्रांसफरी का मतलब ये है, अभी बताया था ना कि ट्रांसफरी मेरा एक तरह का डेटर बन गया, यहाँ भी ट्रांसफरी मेरा डेटर बन गया। ठीक है, ये रहा ट्रांसफरी टू बैंक, और जब उसने मुझे पे किया तो मेरे पास ये पैसा आ गया बैंक टू ट्रांसफरी, तो ये एंट्री होगी। दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हो, देयर इज नो इशू। तो मैम ऐसे तो फिर रियलाइजेशन की अमाउंट तो फिर अलग आएगी ना, अगर हाँ, तो ये वाला लेंगे तो ट्रांसफरी की भी तो अलग आएगी ना। ट्रांसफरी की भी तो अलग आएगी, इवेंचुअली हमें डिफरेंस देखना है। ठीक है, ओके फाइन। सो नेक्स्ट इज आपका ये सब हो गया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्लास में भी इस पे एम्फेसाइज किया था, यहाँ आ जाइए, ये रहा। अब भाई सब कर दिया, एसेट भी डाल दिए, लायबिलिटी भी डाल दिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर दिया, जो परचेजिंग कंसिडरेशन थी उसकी भी एंट्री कर दी। तो मुझे करना है क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट को, निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर क्लोजिंग माई रियलाइजेशन अकाउंट आई शुड मेक श्योर जो क्या मेरे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, अमाउंट जो मैं पे कर रही हूँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्या मैं उन्हें एट पार पे कर रही हूँ, क्या मैं उन्हें एट अ प्रीमियम पे कर रही हूँ, क्या मैं उन्हें एट अ डिस्काउंट पे कर रही हूँ। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जस्ट अ मिनट, एंट्री नंबर 5, just a minute, payment to preference amount payable, rather I would say, write it to you, and next amount payable to preference shareholder. So I said, like, let's say मैं उसे प्रीमियम पे कर रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैं ज्यादा पे कर रही हूँ। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा पे कर रही हूँ का क्या मतलब है मेरे लिए? मेरा जो प्रॉफिट था वो कम हो जाएगा, जो रियलाइजेशन था, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाता है जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है। लेकिन अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम में पे किया होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलना था वो कम हो जाएगा ना, इन शॉर्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अमाउंट जो पेबल है एज सच, अगर अमाउंट मेरा कोई भी पेबल है तो वो मेरा यूजुअली होता है, जो एंट्री होती है दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर करते हो आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन यहाँ पे ये तो तब था, ये रहा मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये तो तब था जब मैं एट पार पे कर रही हूँ। लेट्स से आई एम पेइंग एट अ प्रीमियम, तो आई नो कॉमन ये तो रहेगा ही, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी रहेगा। But now there is a premium that I am paying. Just give me a second. Yeah, sorry. So I was saying that I am paying a premium. अब बताओ ये जो प्रीमियम है ये कहाँ जाएगा? एनीबडी? पहले तो ये बताओ, डेबिट होगा, यहाँ डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? पहला क्वेश्चन तो ये। प्रीमियम पेबल मैम डेबिट होगा। will be taken by realization. Yeah, that is right, and you are saying that debit hoga, that is also correct. So which means that realization, or within bracket, that is the premium payable.
मतलब इसका मतलब क्या है, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा पे कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसे ज्यादा पे कर रही हूँ तो वो मेरे लिए एक तरह से ये जो भी अमाउंट है रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट आ रहा था उसको कम कर देगा, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया। ऑन दी अदर हैंड हो सकता है मैं डिस्काउंट पे कर रही हूँ, जब डिस्काउंट पे कर रही हूँ, just a minute, somebody is trying to join. Yeah. अब जब डिस्काउंट पे कर रही हूँ तो उल्टा हो जाएगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया एक तरह से, हो गया डिस्काउंट। एनी डाउट? बट व्हाट इज द पॉइंट हियर, बिगेस्ट पॉइंट हियर इज रियलाइजेशन क्लोज करने से पहले ये जरूर देख लें कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर रहे हो, पार पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो या फिर डिस्काउंट पे कर रहे हो। भाई पार पे कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रियलाइजेशन को बंद कर दो, लेकिन अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो तो आपको ये एंट्री पास करनी जरूरी है बिफोर क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, make sure you check whether you are paying preference shareholder at par, premium or discount, and accordingly pass the entry before closing the realization account. Any doubt, please ask. Yeah. So this is what has happened, and so therefore this is what is happening. And in short, इसके बाद मैं settle भी कर सकती हूँ preference shareholder का account. This was what point number 5. हाँ, point number 5. एक चीज और यहाँ पे भी डाल देते हैं अगर आप जानना चाहें। हाँ देखिए यहाँ से ये जो चीजें आ रही हैं, ये चीज आपकी वहां जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ प्रीमियम या लॉस जो भी होगा वो भी यहाँ पे जाएगा। नाउ आई वाज सेइंग दैट नाउ यू कैन मेक द पेमेंट, पॉइंट नंबर 6 पॉइंट, पेमेंट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब आप कैसे पे कर रहे हो डिपेंड करता है, जो भी पे कर रहे हो पेमेंट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जैसे भी पे किया आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू, हो सकता है इक्विटी शेयर्स दे रहे हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो सकता है कैश दे रहे हो सकता है ये दे रहे हो डिवेंचर्स दे रहे हो। अब ये ध्यान रखना जो भी कर रहे हो, सपोज उसे इक्विटी शेयर पे कर रहे हो तो इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी या फिर टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, दिस इज हाउ यू विल मेक द पेमेंट। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, क्योंकि सबसे पहले लिक्विडेशन में भी अगर आपको याद हो कौन आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, तो आपने उसको पे कर दिया। अब फाइनल क्लेम है इक्विटी शेयर होल्डर का। अब जब इक्विटी शेयर होल्डर क्लेम करने लगेगा, और रादर उसे दैट हमें फॉर रिसीविंग द परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम द ट्रांसफरी कंपनी कुछ जो पेमेंट्स करेगी फॉर receiving this consideration from the transferee company, तो भी होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो सकता है, एंड देयरफॉर आपकी एंट्री हुई इक्विटी शेयर्स इन पीसी, preference shares in PC to ट्रांसफरी कंपनी, मतलब ट्रांसफरी कंपनी ने ये चीजें इशू कर दी। अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि मेरा रह गया खाली अब इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट। अब जब इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट रह गया, अगर आपको याद हो हमने कल भी बात की थी फिक्टिशियस एसेट्स का क्या, यहाँ पे आ जाते हैं वापस रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या मैं फिक्टिशियस एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगी? एनीबॉडी? नो। सो वेयर विल आई ट्रांसफर देम? Equity shareholders.
इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करूंगी. सो देयरफॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब मैं ट्रांसफर करूंगी, अब मुझे इक्विटी शेयर होल्डर में जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो सब डालना है. बिसाइड्स दैट अगर मेरा कुछ जनरल रिजर्व में है, बैलेंस शीट में कुछ भी है, वो सारी चीजें जो भी प्रॉफिट वगैरह है, जिस भी टाइप का रिजर्व है, वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर को देना है. उसके अलावा अगर फिक्टिशियस एसेट्स है, दैट इज डिस्काउंट एटसेट्रा एटसेट्रा, इट इज लाइक अ, वो भी वहां कहाँ पे जाएगा, आपके प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स का लॉस बन जाएगा एक तरह से. तो मतलब मैं एंट्री क्या पास कर रही हूँ, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर. दो के क्यों आ रहे हैं लोग, टू इक्विटी शेयर कैपिटल. पहले जो भी मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल थी, बैलेंस ब्रॉट डाउन था जो मेरा, वो ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल. के अलावा मैंने आपको क्या बोला, कोई भी जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं मुझे रिजर्व्स, वो सारे यहाँ आ जाएंगे. किसी भी टाइप का सीआरआर एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे जो भी बैलेंस शीट में होंगे वो यहाँ आएंगे. इसके उसमें जा रहे हैं टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर. उल्टा भी होगा, उल्टा भी होगा. उल्टा क्या होगा, मैंने आपको बोला कि अगर मेरे कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं तो मुझे उनकी भी एंट्री करनी पड़ेगी. तो यहाँ आपने करा, ठीक है, यहाँ पे आपने इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट किया था, उल्टा आप डेबिट कर दोगे. इक्विटी शेयर होल्डर टू जो भी आपके फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे यहाँ आ जाए. ठीक है. अब इसके अलावा भाई, इसके अलावा भी मैंने रियलाइजेशन क्लोज किया होगा. जब मैंने रियलाइजेशन क्लोज किया होगा, मेरे पास प्रॉफिट या लॉस आया होगा. इधर चलिए रियलाइजेशन में ऊपर, ये देखिए यहाँ पे, या तो यहाँ आया होगा मेरे पास बाय व्हाटएवर. ठीक है, मैं भी आपसे पूछूंगी क्या होगा वो, और या तो यहाँ आया होगा. चलिए कौन बता रहा है, मैं हिंट दे देती हूँ. जो भी आएगा वो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करूंगी, इतना मुझे पता है. ठीक है, ये भी जो भी होगा ये मैं इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करूंगी, ये मुझे पता है. पर ये होगा क्या इज द क्वेश्चन. बताइए, एनीवन बताएगा कोई? प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन. नहीं, मेरे को ये बताओ, डेबिट या क्रेडिट साइड की बात कर रही हूँ. पहले डेबिट की बात करो. ये जो है ये क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट? प्रॉफिट. मैम प्रॉफिट होगा. बिल्कुल सही. और ये होगा लॉस. ठीक है, जिसको तो यही मैंने यहाँ भी करना है. ये मैंने अभी तक किया नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने खाली बैलेंस शीट वाले डाले. अब मेरे को जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर, which means realization to equity shareholder. क्या ये प्रॉफिट लॉस, एनीवन? रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोलो फिर से बोलो. वही चीज पूछ रही है जो पहले प्रॉफिट. करेक्ट. एंड आपका उसी की वाइस वर्सा आप लॉस कर देना. ठीक है, वो मैं नहीं कर रही हूँ. ओके, एनी डाउट? हो गया सारा? Ma'am, I have a doubt. बोलो बोलो बोलो. Ma'am, the premium that was being paid to the preference shareholder before the closure of realization account, Yes. ma'am, shouldn't that be set off using securities premium? Like, instead of transferring it to the debit of realization, shouldn't it be set off using SPR? That it would have been done already. See, this is not what you are confusing two things. One is what you are telling me, you are talking about redemption of preference shares, right? Isn't it? Yes, ma'am, but it is a sort of premium. Listen. No, wait, listen. What you're talking about is that when you are redeeming preference shares and,
that is what you're doing. Here what we are doing is, it is a new business that has been, sold, an old business which has been sold off. अगर कोई business मैंने sell off किया है और मैंने जब वो sell off किया था तो मैंने उसको ये payments की हैं, तो जो भी payments मैंने जो भी payments मैंने उसे pay की हैं वो मैं कैसे कर रही हूँ, that is what is happening here. Yes, और ma'am. आप ये बोलते हो, एक इशू ये भी आ जाता है ना, एक इशू और भी आ जाता है यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम से मैं उसको सेट ऑफ करूँ. It entirely depends, in the question you might not have any security premium, you might not have any general reserve, and you might not even have any surplus. आपके बैलेंस शीट में ये चीजें ही ना हो. Yes, ma'am. So that way. Okay. So Okay. yeah. So now we move on to, ये हो गया सब. अब मुझे बताओ, ये सब देखने के बाद ऊपर नीचे एक बार चेक कर लो, बताओ क्या कुछ रह गया. सोचो आपने बिजनेस बेचा, आपने एसेट्स सब कर दिए, उनको बंद कर दिया, आपने जो भी है सब कुछ कर लिया. क्या आपको लगता है यहाँ अभी भी कोई एंट्री रह गई है? बोलिए. Yes, ma'am. कौन सी एंट्री बोलो नारायण? Sale of assets and payment of liabilities. हाँ, दैट इज राइट. अगर मैं कोई भी सेल ऑफ एसेट या पेमेंट ऑफ लायबिलिटी कर रही हूँ उसकी तो मैं एंट्री करूंगी. और एंट्री क्या होगी नारायण, कैन यू टेल मी? Ma'am, sale of assets की होगी bank account debited to realization, Yes, and that's right. payment of liabilities की vice versa realization to bank. ठीक है. तो मैं लिख नहीं रही हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. बट आफ्टर दिस इज देयर स्टिल एनीथिंग लेफ्ट? मैम गुडविल. नहीं बेटा, ये देखो, ये किसका अकाउंट है? आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो. आप परचेजिंग कंपनी की बात कर रहे हो. ये है ट्रांसफरर का अकाउंट, जो बेच रहा है उसका अकाउंट है. सोचो जरा थोड़ा सा. अगर आप थोड़ा सा हिंट देती हूँ, परचेज कंसिडरेशन जब तुमने निकाली, मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तो पेमेंट कर दी. इक्विटी शेयर होल्डर का क्या हुआ? अभी तो आपने सिर्फ क्लेम निकाला, इक्विटी शेयर होल्डर का कितना है और ये सब उसका क्या व्हाट यू कॉल अकाउंट भी बंद कर दिया. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को पे नहीं करोगे. यहाँ जहां ऊपर तुम कर रहे थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ये रहा, ये जो तुमने किया है, ये इसको इक्विटी शेयर होल्डर को पे नहीं करना. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो तुमने पे कर दिया. इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे रह जाएगा. जब आप पीसी निकाल रहे थे कल बैठ के, पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट मेड इन इक्विटी शेयर, वो एंट्री कहाँ है? यहाँ पे है कहीं? एनीवन बोलिए. और रादर इट कैन, No, ma'am. और करना. हाँ, और रादर वन मोर थिंग, व्हाट अबाउट क्लोजिंग योर इक्विटी शेयर होल्डर? आपने इक्विटी शेयर होल्डर में सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस डाले. ओपनिंग बैलेंसेस इन द सेंस जो भी जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह, जो भी आपके फिक्टिशियस एसेट्स है वो डाले. उसके अलावा जो भी प्रॉफिट रियलाइजेशन से आ रहा है वो डाले. बट इक्विटी शेयर होल्डर को बंद भी तो करोगे. वो बंद उसी अमाउंट से करोगे एक्चुअली जो से पेमेंट होगी. क्लोजिंग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, दैट इज जो भी आपका पीसी निकला होगा, उससे जो भी आ रहा होगा, अगर आप उसे इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो या व्हाटएवर, जो भी आप उसको इशू कर रहे हो, यू माइट बी इशूइंग इक्विटी शेयर्स इन purchasing company, or you might be giving cash, whatever. That's it. Quick recap देख लो एक बार. मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन भेजने लगी हूँ. आई थिंक भेजा नहीं मैंने, भेज देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे. एक बार देख लीजिए सब. First, you have 2 minutes time, and I'm sending the question. Okay. So the question comes. Yes, everyone. Are we ready? Can we start the question? Class, बोलिए. Are we ready? Hello. Yes, ma'am. Okay. So the question that we are doing right now is going to be illustration 8, the one that I have sent you. Please check. सबके पास आ गया illustration 8?
प्लीज रीड। मैं आपको रीड भी कर रही हूँ, आप भी साथ के साथ रीड कीजिए। Following was the balance sheet of A Limited as on 31st March 2020, equity and liability and assets, etc. Okay. On the same date, B took over the assets and liabilities of A Limited on the following terms. The shareholders of A Limited were to be allotted 1 share of 100 each at 75 per share paid up in B Limited for every 100 shares fully paid up in A Limited. The debenture holders were to be allotted a debenture of 900 for every debenture of 1000 held by them in A Limited. देखो एक चीज और इसमें क्वेश्चन में देखो नीचे क्या लिखा है। यूजुअली जब आपको बोलते हैं ना वेंडर कंपनी का, तो ये कुछ अकाउंट्स आपको बनाने को बोलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको रियलाइजेशन के बारे में बताया भी। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ये 8th क्वेश्चन तो मैं करूंगी आपके साथ ही करूंगी, डोंट वरी। सबसे पहली बात क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है अमैल्गमेशन के क्वेश्चन में, बोलिए जी। टाइम फॉर यू टू स्पीक। Calculation. नो कैलकुलेशन, नो vendor, कैलकुलेशन, यस vendor and vending company. correct, vendor and vending. So I want to know who is the vendor, बोलिए। Ma'am, A. yes, and which also means vendee is B। देखो बेटा, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जब अगर मैं वेंडर कंपनी ए है तो मैं ऊपर क्या लिखूंगी, जब जर्नल एंट्रीज करने लगूंगी तो मैं लिखूंगी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बी, सॉरी ए, इन द बुक ऑफ ए। सबसे पहली बात ये, उल्टा लिख दोगे ऑब्वियसली भाई नंबर कटेंगे, इतना ही नहीं पता तुम्हें। इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड, राइट, फाइन। So we move on now। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए वेंडर आपका है ए, तो पहले मैं एंट्री करने से पहले अब मेरे लिए एक और सेकंड स्टेप जो है वो क्या है। एनीवन व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सीधा एंट्रीज पे आ जाऊं या कुछ और करूं? नो वन? In the nature of purchase or merger. As such here maybe that is not even very important, क्योंकि इसमें सीधा देखो ना। ठीक है मैम, तो फिर परचेज कंसिडरेशन। हाँ, लेकिन रीजन सुन लो नारायण, रिलैक्स। रीजन क्या है पता है? क्यों बोला मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बताओ रीजन क्या है, बोलो। कैन एनीबडी गिव मी द रीजन? देखो मैंने अभी क्या कराया आपको, वेंडर बुक। वेंडर बुक में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ वो कैश वाली चीज के अलावा, अदरवाइज सब सेम है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप मर्जर कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, ठीक है। रीजन ये है पहली बात। तो सेकंड स्टेप क्या है, आपको कोई और बता रहा है? मुझे को पूछना पड़ेगा यहाँ पे। क्षितिज बताओगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्षितिज Calculation of purchase consideration. चलिए, यस यस, एवरीवन प्लीज कैलकुलेट द पीसी एंड गिव मी। वो मैं नहीं करूंगी यहाँ पे, कल बताती हूँ, करके बताओ, करके बताओ। और मुझे मेथड भी बता दो परचेज कंसिडरेशन का कौन सा। I want the calculation of PC. I will not do it, please. Everyone do it and tell me the answer. मैम 3,75,000 है। हाँ, मेथड बोलो, मेथड बोलो ना। नेट पेमेंट्स। Yes, that's clear. Does anybody have a doubt तो पूछो, नहीं तो this is done from my side. No, Doubt है? no doubt. नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा है नेट पेमेंट मेथड से मेरी पीसी आई है 375, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। एंट्रीज भी कर लेंगे लेकिन पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो मैं इसको 4 इसमें बना लेती हूँ। हाँ 4 एक्सेल में बना सकते हैं। चलिए जी, बैलेंस शीट मेरे पास सामने है। सबसे पहले क्या करना है मुझे, मैं एक करके एंट्री पूछने वाली हूँ, ठीक है। कहाँ से पूछूं, एक सेकंड। सुशांत आर यू देयर? जैसे क्वेश्चन पूछो लेफ्ट द मीटिंग हो जाते हैं लोग। सुशांत कनौजी आर यू देयर? कोई बात नहीं। श्रेया आर यू देयर बेटा? शांभवी?
Shambhavi. हाँ, I knew Shambhavi you would be there. कोई हो ना हो. Okay, so Shambhavi, what do you think will be the first entry in realization account? Shambhavi, पहली एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट में? एनी आइडिया? बोलो तो सही. मैम पहले entry हाँ होगी बोलो. हाँ realization debit हाँ to land and building. बिल्कुल करेक्ट. अमाउंट बोलती जाओ. हाँ मैम to land and building 1,89,000. Perfect. Very good. That's it, Shambhavi. That's what I wanted to know. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Any doubt, anyone? बैलेंस शीट से मैंने लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया, उसे बंद करना है. चलिए नेक्स्ट आफ्टर Shambhavi, वन बाय वन प्लीज बोलते जाइए. सैंड्रा, सैंड्रा आ जाओ. मैम प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख. Perfect. प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख. ठीक है, परफेक्ट. चलिए नेक्स्ट. नीचे से चल रही हूँ, आप लोगों को भी लिस्ट दिख रही होगी आई थिंक. ऋषिका. Ma'am, we'll transfer inventory. That is 1,46,000. Okay. Rishika says to inventory 146. 146. Okay. After Rishika, who do we have here? Raghav, are you there? राघव नहीं है. प्रतिभा, प्रतिभा. मैम ट्रेड डेटर्स हाँ अमाउंट बोलो. 1,50,000. 1,50,000. ठीक है बिल्कुल. 1,50,000. नेक्स्ट कौन है आपका? प्रतिभा हो गया. प्रसिद्धि, आर यू देयर? प्रसिद्धि नहीं है. प्रणव, प्रणव. पंकज आप बताओ बेटा. पंकज हाँ बोलो. to realization. फिर से बोलना बेटा, तुम्हारी आवाज थोड़ी वो कर रही है. Creditor to realization. अच्छा एक सेकंड, इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ एवरीवन. अब पॉइंट यहाँ पे ये है, कैश क्यों नहीं किया आपने प्रणव? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई डिड यू नॉट डू टू कैश? अब डेटर्स तो 150 हो गए. डेटर्स के बाद तो मुझे वो दिख रहा है ना कैश. कैश क्यों नहीं किया? आंसर है पंकज. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Cash. No, ma'am. ओके कोई बात नहीं, म्यूट कर लो अपने आप को. आई जस्ट एक्सप्लेन एवरीवन. सी बेटा, मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर परचेज होगा, टेक ओवर किया होगा तो लेंगे, मर्जर होगा तो लेंगे ही लेंगे. यहाँ क्वेश्चन पे साफ लिखा है ऊपर, ऑन द सेम डेट वी टुक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. जब वो बोलेगा द एसेट्स एंड लायबिलिटीज और नीचे कुछ नहीं लिखा कि सिर्फ ये एसेट्स लिए हैं और ये वाला एसेट नहीं लिया है, तो अजम्पशन इज कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर किए गए हैं. देयरफॉर मैं यहाँ पे कैश भी ट्रांसफर करूंगी, दैट इज 39,000. राइट नाउ एसेट में कुछ रह गया, अंडरराइटिंग कमीशन डालूं क्या? एनीवन? नारायण, अंडरराइटिंग कमीशन डालूं? No, ma'am. नो. तो फिर क्या डालूं नेक्स्ट? ठीक है नारायण. नेक्स्ट पर्सन, इसके बाद क्या डालूं? आप अपनी मर्जी से बताओ जिसे आंसर देना. Ma'am, debentures. बाय डिबेंचर्स. अमाउंट बोलो. Ma'am, 3 lakh. ठीक है. नेक्स्ट जो भी जवाब देना चाहता है दे सकता है. नेक्स्ट क्या है? And trade creditors 1,20,000. परफेक्ट. नेक्स्ट एनीवन? कुछ और रह गया? अब क्या करूं बोलो, कोई बताएगा? मैम बाय बी लिमिटेड 3,75,000. राइट. सारे एसेट्स हो गए, सारे वो हो गए. ये मेरा आपका ट्रांसफरी का हो गया पीसी से 375. ठीक है. ओके नाउ टेल मी एवरीवन, अब क्या करूं? क्या होना चाहिए मेरा नेक्स्ट स्टेप? एनीबडी? व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? एनीवन? मैम प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट नहीं है. देखो बेटा, हमें ये देखना है, हमें ये नहीं देखना. हमें ये देखना है कि प्रेफरेंस शेयर को क्या मैंने पार पे किया है, प्रीमियम पे किया है या क्या किया है.
ठीक है, अब यहाँ देखो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है, नहीं है ना, बैलेंस शीट में दिख रहे हैं कहीं प्रेफरेंस शेयर, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो मेरा कोई प्रॉफिट लॉस कम नहीं हो रहा, विच मीन्स मैं यहाँ पे टोटल कर सकती हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी द टोटल, डेबिट साइड बढ़ी है या क्रेडिट साइड बढ़ी है, ये भी बताइए, और बताइए प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। मैम डेबिट कितनी है डेबिट, बोलो। 9,24,000। दैट्स करेक्ट। नारायण, तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, ये भी बता दो। मैम लॉस। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं यहाँ, लिखना क्या है मुझे, यहाँ लिखूंगी बाय शेयर होल्डर ब्रैकेट में लॉस। अमाउंट बोलो नारायण। 1,29,000। दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब एवरीवन, आई वांट टू डू द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आल्सो, क्योंकि इसमें 2 अकाउंट बोले हैं, एंट्रीज तो आप कर भी लोगे, आई एम श्योर। सो नेक्स्ट इज ही सेज मेक द शेयर होल्डर्स अकाउंट ओनली। सो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे खाली इक्विटी शेयर होल्डर है, तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बना रही हूँ। लेट्स बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो हियर आई गो, ठीक है, ये हो गया मेरा इक्विटी शेयर। पहला है मेरा बाय बैलेंस कैरिड ऑन, और रादर बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। I saw the balance sheet and it shows it is 5 lakh, तो मैंने 5 लाख का 5 लाख यहाँ ट्रांसफर कर दिया। देखते हैं कोई रिजर्व वगैरह कुछ भी है कि नहीं। Yes, I do have P&L of 6,000. I do have general reserve of 3,000, so I will have to transfer that. So by P&L 6,000 and general reserve that is 3,000. Okay. अब बताओ, अब कौन बता रहा है, इसके अलावा क्या डालूं बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में? मैम अंडरराइटिंग कमीशन। यस, द ऑपोजिट साइड, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन, ये है आपकी 5,000। व्हाट एल्स एनीबॉडी? Realization loss. यस, टू रियलाइजेशन which comes out to be 1,29,000. All of you please do the total. Tell me what is the balance. Tell the total bata. Ma'am 3,75,000. That's the balance. Narayan, tell me the total first. 5,09,000. That's correct. अब देखो नोट करो एवरीवन, ये है आपका, और आपने नोट किया जो बैलेंस बोला नारायण ने, वो ही है परचेज कंसिडरेशन, वो ही है वो एंट्री जो अगर आपने ऊपर देखी हो जब हम क्लोजिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कर रहे थे। इक्विटी शेयर होल्डर 2 शेयर्स इन बी लिमिटेड, ये हो गया मेरा क्लोज अकाउंट। एनी डाउट? एंट्रीज तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन टुडे इज आपका वेंडर की बुक में एंट्रीज के अलावा there are important accounts that you're supposed to make. I have done 2 of them with you, and the next question that I have sent you is actually your homework. We have a lot of time now, Saturday also, Sunday also. Besides JR Monga, the question that I have right now sent you, you will be doing that also. So you will be doing that, realization account बनाओगे उसका, और उसकी journal entries करोगे vendor की book में, and JR Monga में से भी मैं questions कुछ बता देती हूँ आपको, which you can try, okay? And then we'll wind up and meet on Monday. And Monday we'll do purchasing company की book में entries. Okay, so the questions for you will be it will be illustration 22. प्लीज नोट, अगर किसी भी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, सपोज परचेजिंग कंपनी की भी एंट्रीज करने को बोला है, वो मत करना, क्योंकि वो मैंने नहीं कराई अभी आपको। हाँ, जो कर चुके हैं रिवीजन विवीजन सबका हो गया, वो कर लेना, बट जो लोग पहली बार कर रहे हैं सो अदरवाइज बाकी सब तो पूरा ही क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है जिसका आंसर आपके पास नहीं है, पहले आप वो करोगे, उसके बाद आप JR Monga पे इलस्ट्रेशन 22 करोगे, और 21 और 20, I think that should be enough, या एक और दे देती हूँ, 19 also, 19 also, that's it. So this is your मैम एक homework. डाउट है, हाँ हाँ बोलो नारायण।
मैम ये वाला क्वेश्चन परचेज में क्यों और मर्जर में क्यों नहीं, कैसे रिकॉग्नाइज करना तुमने है मेरी वो बता बात दो। नहीं सुनी। नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये नहीं बोला कि ये परचेज में। मैंने तुमने सुना ही नहीं। मैंने बोला यहाँ उसने लिखा हुआ है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। मेरी 5 कंडीशन हाँ, होती है, तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। दूसरी चीज बुक वैल्यू पे ही लिया हुआ है, उसने कोई नई चीज नहीं बोली, ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस अगर तुम देखोगे और वो फुलफिल हो रही है तो वो मर्जर है। मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि अगर ये मर्जर नहीं भी है, अगर ये परचेज भी है, तो भी वो कह रहा है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑल का मतलब है कैश भी टेक ओवर है। और मैंने नोट क्या लिखाया था, ये देखो, ये देखो, कैश विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन इन केस ऑफ मर्जर। मतलब मैंने बोला अगर कोई क्वेश्चन मर्जर में है तो कैश तो ट्रांसफर हो गई। दूसरा, बट इन केस ऑफ परचेज कैश विल ओनली बी ट्रांसफर्ड इफ टेकन ओवर। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर, सो देयरफॉर दोनों ही केस में कैश को मैं ट्रांसफर कर दूँ। समझे? अच्छा ठीक है। ऑल्सो आप 5 टेस्ट इस पे लगा सकते हो, 5 चीजें देख सकते हो और पता कर सकते हो कि परचेज है कि नहीं। 90% वाला भी फुलफिल हो रहा है यहाँ तो। बाकी एक अजम्पशन जरूर है डेफिनेटली, अगर आप इसे मर्जर मारोगे कि बिजनेस इज बीइंग टेकन ओवर एंड इट इज बीइंग इंटेंशन इज टू कैरी इट आउट, तो लेट्स से ये मर्जर नहीं है, परचेज ही मान लेते हैं। परचेज पे मान लेते हैं तो भी कैश तो लिया है ना, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ली है ना, इसीलिए। ठीक है, ओके। एनीबॉडी एल्स? So shall we wind up the class? All right, everyone. Happy weekend. See you on Monday. Bye-bye. Thank you.